Hello India, welcome to Budget Bazaar 2024. जहां हम बातचीत करेंगे over some of the biggest headlines from July's Union Budget announcement. And ये हम करेंगे via two very different perspectives. एक है हमारे voice of experience and उमर, Mrs. Rajeshri. And the other is the face of the fresh जोशीले Indian youth, Miss Sampriti. So let's get right into it with the most important bit. हमारे मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के लिए विच इज इनकम टैक्स. सो यहाँ पे थोड़े अपडेट्स है ओल्ड रिजीम में नहीं बट न्यू रिजीम में कि हमारा जो स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन था वो 50,000 से 75,000 बढ़ गया है. और जो हमारा यूथ है, जो यूथ इंडिया है, जो 10 लाख रुपए कमाता है पर ईयर, उनको बेनिफिट्स है बिकॉज स्लाइटली देयर आर चेंजेस इन द टैक्स स्लैब. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. Yeah, and as you can see from the table, it's really beneficial for youngsters, freshers like me. And also the government has announced कि 17.5 thousand rupees on an average common man बचा सकता है per year on taxes. That's like मेरे month का rent, so which is perfect for me. So overall rationalization and simplification हुआ है. Now what about capital gains tax? यहाँ I think there are some big changes. Yup, especially investors के लिए. Did you know कि short term capital gains यानी कि STCG पे tax rate change हो गया from 15% to 20%. So young, dumb and broke investors like me, we will have to switch off real soon to long term investments. बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो पहले 10% था अभी वो 12.5% कर दिया है उन्होंने. पर ओवरऑल जो एग्जेम्पशन लिमिट है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है. जैसे पहले 1 लाख था अभी 1.25 लाख पर ईयर कर दिया है. अब जो सारे असेट क्लासेस है वो इंक्लूड होंगे बस 2 सिंपल टैक्स कैटेगरीज में. दैट इज वन इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड अनदर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. दिस इज एक्सेप्ट अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स which will be taxed as per the slab rates now. And what about GST and custom duty? How do you like the taxation updates there? I personally like that जो gold and silver में जो BCD है, that is basic custom duty, has brought down to 6%. And in platinum also BCD has brought down to 6.4%. Also, all you tech freaks in Greece out there, there's good news for you here also. यहाँ पे मोबाइल चार्जर्स एंड मोबाइल PCBA पे द कस्टम ड्यूटी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% टू 15%. ट्रू. और एक पूरी लिस्ट है जिसपे BCD रिड्यूस हो चुका है. आप लिस्ट देख सकते हो. And one final update is there of e-commerce companies like Swiggy, Zomato, Flipkart, Amazon जिस पे TDS घट चुका है from 1% to 0.1%. Isn't it a big slash? अच्छा, now राजेश्री एंड समृद्धि, आपको क्या लगता है, क्या ये बजट ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में रखा है? बिल्कुल भाई. 3.4% of GDP is allocated to infrastructure after all. That's a provision of 11,11,111 crore. Wow, what an angel number na. This is the perfect juggle. And I do agree that infra is on spotlight. What with 2 crore additional homes being added to the PM Awas Yojana scheme and 10 lakh crore rupees being made available for the housing needs of the urban poor and the middle classes. Interesting. Now let's come to the 2 sectors जिसके लिए हमारी working और student population patiently आस लगाए बैठी है, which is employment and education. Right, so some very interesting news here. Government हमारे higher education को financial support देना चाहती है with loans up to 10 lakhs अगर तुमने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया तो ही. गवर्नमेंट 3% ऑफ एनुअल रिटर्न्स पे करने के लिए तैयार है विद सम ग्रांट्स. एज पर आवर होपफुल ग्रेजुएट्स, एक नई स्कीम से 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप मिलेगी फॉर 12 मंथ्स और वो भी 5,000 की मंथली अलाउंस एंड 6,000 का वन टाइम अलाउंस के साथ. वाओ. यस, एंड दैट्स नॉट ऑल. एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी 3 स्कीम्स आएंगी. स्कीम ए एंड स्कीम बी में जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज है, जो फॉर्मल सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले हैं, उनको गवर्नमेंट से मिलेंगे 15,000 रुपए. एज फॉर स्कीम सी, इसमें जो कॉर्पोरेशंस है, जो नए एम्प्लॉइज ज्वाइन होने वाले हैं 2 साल के लिए, उनको गवर्नमेंट 3,000 रुपए देने वाली है फॉर EPFO. फाइनली व्हेन वी कम टू स्किलिंग, 1000 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड होने वाले हैं नेक्स्ट 5 सालों के लिए फॉर 20 लाख यंग पीपल. And for all those working women out there, there's good news coming for you also. And that's right, Sampriti. अभी हम जैसे वर्किंग वुमेन्स के लिए नए हॉस्टल्स एंड क्रचेस बनने वाले है ना. बढ़िया बात. बिल्कुल, गर्ल पावर. सही है. So in the end,
आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग कि आपके हिसाब से ये बजट सबसे ज्यादा किन के लिए फ्रूटफुल रहेगा, कॉर्पोरेशंस, मिडिल क्लास या फिर यूथ? देखो भाई, हमने तो अपने ओपिनियंस बता दिए, अपने फैक्ट्स बता दिए। अब आप बताओ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको क्या लगता है अबाउट बजट 2024? Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.